Hello dear students, welcome back. In our previous lecture, you study the first paragraph of this lesson. Our lesson is sixth lesson and its name is It's Only a Matter of Practice. It's only a matter of practice means someone who has achieved achieved a thing or someone who has a talent something like I told in our previous lecture, like Sachin Tendulkar. He is a great cricket player, you know that. Okay, so why he is a great cricket player? Because of his practice. He takes a lots of efforts, and he takes so many efforts to fulfill his dream, and that's why is always practice he is always practice his cricket. So students, that's why he can prove himself, and you see that he is a great cricket player. So in this lesson, it is a story. Okay, it's belonging to a China. Long ago, in a faraway China, there lived an archer called Chen Yozi. He was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. He could hit the target preciously at the center, even it was placed at a very long distance. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. In our previous lecture, I told you this story is belonging to the China, and Chen Yozi, he was a person who was a great archer. Archer means, students, in Marathi we called it Dhanurdhar. What we called it? Dhanurdhar. If you know that, students, in Mahabharat, Arjun. Did you hear the name of Arjun? In Mahabharat, Arjun, Nakul, Sahadev, Yudhishthir, these are the 5 Pandavas. And Arjun, he is one of the most skilled archer. If you don't know that, so you can ask your parents about Arjun. Okay, students. So Chen Yozi, he was a great skilled archer, and he could perform wonderfully feats of archery. He could perform wonderfully. He could hit the target preciously at the center, even when it was placed at a very long distance. Chen Yozi was a great archer, and he could hit the target preciously. He could hit the target preciously at the center, even when it was a place at a very long distance. If you know, he liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. Students, if you know that, you have also a talent. Archery. Archer means someone who shoots arrows from a bow. Arrow means arrow, and bow means dhanush, and bow means arrow. You know that, students. In our previous lecture, I told you गुलेर. You know that गुलेर? What is गुलेर? अगर आपको मालूम हो, स्टूडेंट्स, आप सब लोग गुलेर से खेलते होंगे, राइट? तो आपको गुलेर से आप लोग क्या करते हो? आप भी तो किसी जगह कोई निशाना पकड़ते हो, राइट? ऐसे गुलेर पकड़ते हो, उसमें वो पत्थर रखते हो, और फिर आपका निशाना सही जगह पे पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए आप क्या करते हो? गुलेर से वो पत्थर उछालते हो, और बराबर आपको जहाँ पे निशाना लगाना होता है वहाँ पे जाके वो पत्थर अपने आप फिर पहुँच जाता है. तो ये जो चेन योजी है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे. मतलब वो अपना टारगेट फिक्स करते थे, और उनके वो टारगेट फिक्स करते ही वो बराबर अब वो जो
एरो होता था वो उस बो से वो बहुत ही वंडरफुली अच्छे से एकदम छोड़ देते थे, और फिर जहाँ पे उन्होंने वो टारगेट, उनका जो टारगेट है वहाँ पे वो पहुँच जाता था। फिर वो उसके बीच में कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, मतलब उनको जहाँ पे वो निशाना लगाना है, उनके और वो जहाँ पे उनको निशाना लगाना है उसके बीच में कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, वो जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो, फिर भी वो उनका निशाना एकदम से सही लगता था। और ये जो चेन योजी थे, इनका ये जो टैलेंट था, इनको ये सब लोगों को दिखाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, स्पेशली क्राउड्स में। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए होते हैं, जहाँ पे जो सब लोग मिलके जो भीड़ जमा हुई होती है, भीड़ में उनको उनका ये जो टैलेंट है वो दिखाना बहुत ही अच्छा लगता था लोगों के बीच में। क्योंकि अगर आपको मालूम हो, जैसे कि हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो उस दौरान अगर आप आपने किसी कंपटीशन में परफॉर्म किया है, तो उस टाइम क्या होता है, आपके सभी जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपको चीयर करते हैं, आपको एडमायर कर आपके सभी फ्रेंड्स आपको प्रोत्साहित करते हैं, ताकि आप जो भी कोई कंपटीशन खेल रहे हैं जिसमें उसमें आप अपना 100% दें और आप वो कंपटीशन जीत सके। उसके लिए आपके सभी फ्रेंड्स आपको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, जैसे किसी भी जिस स्टूडेंट का जो नाम हो उस नाम से वो आपके फ्रेंड्स आपको बुलाते हैं। जैसे किसी का नाम राहुल हो, किसी का नाम रोहित हो, तो सब आपके सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना जोर जोर से, राहुल राहुल। तो वैसे ही ये जो चेन योजी, ये जो आर्चर थे, ये भी बिल्कुल उनको भीड़ वाली जगह पे उनका ये जो टैलेंट था वो दिखाना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते थे। One day he was practicing his skill in front of many admirers. He noticed an old man standing at the back. The man was carrying a gourds of oil that were hanging from a long can on his shoulder. All the other people were clapping their hands and praising Chain Yosi. But this old man was quiet. He neither clapped nor uttered words of praise. He just stood there nodding his head and said, "It's just a matter of practice." So students, one day, एक दिन चेन योजी ये जो थे ना, ये फिर से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही लोगों के बीच में वो अपनी ये प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो लोगों को उनका ये जो टैलेंट था, उनकी ये जो स्किल है वो सब लोगों को दिखा रहे थे। और उसी टाइम उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि एक ओल्ड मैन, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति जो उनके पीछे खड़ा था, वो जो भीड़ थी वो भीड़ के पीछे खड़े थे। एंड द मैन वॉज कैरिंग अ गॉड्स। वो जो ओल्ड पर्सन था, उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, उन्होंने गॉड्स ऑफ ऑयल, मतलब जो तेल की जो कैन होती है उसको उन्होंने कैरी किया हुआ था, हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग कैन इन हिज शोल्डर, और वो उन्होंने उनके शोल्डर पे कैरी किया था। ऑल द अदर पीपल्स वेर क्लैपिंग देयर हैंड एंड प्राइजिंग चेन योजी। वहाँ पे भीड़ में जितने भी सारे लोग जमा हुए थे वो सभी लोग चेन योजी को चीयर कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे और उनके लिए तालियां बजा रहे थे। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट। बट ये जो ओल्ड पर्सन थे वो एकदम से शांत खड़े थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। He neither clapped nor uttered words praise. He just stood there nodding his head. वहाँ पे ये जो ओल्ड पर्सन थे ये सिर्फ खड़े थे, वो सिर्फ देख रहे थे, ना ही वो ताली बजा रहे थे और ना ही वो तारीफ का कोई शब्द उनके मुंह से निकल रहा था। ही जस्ट स्टूड, वो सिर्फ वहाँ पर खड़े थे। दे आर नोडिंग हिज हेड, वहाँ पे उन्होंने अपनी सर झुका के वो सिर्फ वहाँ पर खड़े थे। और वो क्या बोलने लगे लास्ट में, ही सेड दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ये जो ओल्ड पर्सन वहाँ पे जो खड़े थे वो क्या कहने लगे चेन योजी के बारे में, कि चेन योजी ये जो टैलेंट लोगों को दिखा रहे हैं ये क्या है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सचिन तेंदुलकर की इतने अच्छे क्रिकेटर क्यों बन पाए, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तभी जाके वो बहुत अच्छे क्रिकेटर बन पाए। तो ठीक वैसे ही ये जो ओल्ड पर्सन थे ये चेन योजी के बारे में यही बोल रहे थे कि चेन योजी ये जो लोगों को दिखा रहे हैं, उनकी ये जो स्किल, उनका जो ये टैलेंट लोगों को दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है।
उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, उस वजह से ये इतने अच्छे से सबको दिखा सकते हैं इनका टैलेंट। चेन योजी वॉज अनॉयड। आर यू एन आर्चर योर सेल्फ? डू यू थिंक anyone can do what I can do with my bow and arrows? लास्ट में क्या हुआ स्टूडेंट्स? चेन योजी वॉज annoyed. It means that चेन योजी was getting angry on the old person, and here Chen Yozi said him that are you an archer yourself? चेन योजी वो ओल्ड पर्सन को बोलने लगे कि तुम खुद को आर्चर समझते हो क्या? डू यू थिंक एनीवन कैन डू? चेन योजी उनसे पूछने लगे कि आपकी मर्जी, आपके हिसाब से क्या ये हर कोई कर सकता है? व्हाट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोज? चेन योजी बोलने लगे कि मैं अपने बो से, अपने धनुष से और ये जो बाण है इसमें मैं इसे ये जो भी कर रहा हूँ, ये तुम्हारी हिसाब से कोई भी कर सकता है? तुम कर सकते हो? तुम खुद को आर्चर समझते हो क्या? चेन योजी इस तरह से वो ओल्ड पर्सन पे भड़के और उनको बहुत, चेन योजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, और वो गुस्से में वो जो ओल्ड पर्सन थे जिन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, उस वजह से वो उन पर भड़क गए, उन पर चिल्लाने लगे कि तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को आर्चर समझते हो क्या? मैं ये जो कर सकता हूँ ये तुम कर सकते हो क्या? या तुम्हारे हिसाब से और कोई ये कर के दिखा सकता है क्या? इस तरह से वो ओल्ड पर्सन को डांटने लगे। नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल. All I said was everything is a matter of practice. So students, ओल्ड पर्सन वो जो थे वो क्या कह रहे थे चेन योजी को? नो सर. द ओल्ड मैन्स रिप्लाइड, नो सर, आई एम नॉट एन आर्चर. ओल्ड पर्सन क्या कहने लगे कि नहीं सर, मैं आर्चर नहीं हूँ. एंड आई डोंट डाउट योर स्किल. और वो ओल्ड पर्सन क्या कहने लगे कि मैं आपका ये जो टैलेंट है, आपका ये जो स्किल है उस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ. मतलब मेरे मन में आपके स्किल को लेकर कोई भी शंका नहीं है. मतलब आपका ये जो स्किल है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपके बारे में कि आपको ये जो स्किल, आप में ये जो टैलेंट है, ये सिर्फ इट्स एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ओल्ड पर्सन क्या कहने लगे कि आई सेड वॉज एवरीथिंग मैटर ऑफ प्रैक्टिस. मतलब इस पूरी दुनिया में आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, कोई भी अगर कुछ करता है या किसी के पास भी कोई टैलेंट है, तो वो सभी चीज़ें किससे पूरी हो सकती है? प्रैक्टिस से. मतलब पूरी दुनिया में अगर हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें क्या ज़्यादा ज़रूरी है? प्रैक्टिस. तो ओल्ड पर्सन ये बोलने लगे कि एवरीथिंग इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सी these 3 paragraphs, okay? And in our next lecture we will going to continue this lesson. Now thank you to listen to me. And students, first you will read this lesson, okay? You read this lesson, and after that in our next lecture we will going to continue this lesson, okay? Thank you.